Welcome back, student. So, in previous class, we have seen the periodic properties, and we have focused mainly on the classification of the elements in the periodic table. हमने periodic table की classification किस तरह से हुई, periodic table में किस तरह से उस elements को रखे, वो हमने देखी थी. अब हम देखेंगे next atomic radius. Okay. So, atomic radius, first of all, so atomic radius is the distance from the center or from the distance from the nucleus of an atom to the outermost electron is known as simple atomic radius. Now the atomic radius again has been classified into three types. Atomic radius के कितने type है? तीन type. First is covalent radius, second है van der Waals radius, and third is ionic radius. So one by one we will see. So what is covalent radius? The covalent radius is defined as half the distance between the center of two bonded atoms joined each other by means of single covalent bond. The distance can be measured by X-ray diffraction and spectroscopic method. Why? Because it is quite impossible to look the atom, and it is again quite difficult to calculate the radius of the atom. That's why the X-ray diffraction study and spectroscopic method has been used for calculation of the covalent radius. So definition of covalent radius of an atom is the internuclear distance between the atom divided by 2, or half the internuclear distance between the two atoms which are bonded by means of covalent bond. The word covalent itself suggests that this radius is related to the covalent bond. यहाँ जो word है covalent, ये word covalent. This covalent word itself suggests that this is related to the covalent bond, and the radius associated with that covalent bond is known as covalent radius. जो radius covalent bond का जो radius है ना, that is the covalent radius. और simple इसकी definition रहेगी half the internuclear distance between the two bonded atoms which are connected by means of covalent bond. Simple definition. Half the internuclear distance between the two atoms which are joined by means of covalent bond is known as covalent radius. So it is the half the distance of the covalent bond. So how to understand this covalent radius? अब यहाँ देखो. Suppose here this is the hydrogen atom, this is another hydrogen atom, और it is the H2 molecule. ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम. ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है H2 मॉलिक्यूल के, ये एक एटम, ये एक एटम. जस्ट आई विल एनोटेट इट. ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन, दिस फर्स्ट हाइड्रोजन, इट इज सेकंड हाइड्रोजन एटम. अब दोनों हाइड्रोजन एटम जो है H2, ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज H2 मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज H2 मॉलिक्यूल. This molecule is H2 molecule. This is the pen. This is the H2 molecule. Okay. Now ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये पूरा हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम. These two hydrogen atoms are bonded to each other by means of bond. This bond is known as covalent bond. इनके बीच में जो bond है ये black color, this bond is the what? Covalent bond. अब ये covalent bond का जो half distance रहेगा, ये distance यहाँ से लेके यहाँ तक, this is known as covalent radius. This is known as covalent radius. So what is the definition? One half distance between the center. ये atom का center क्या है? ये हाइड्रोजन एटम का सेंटर ये है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का सेंटर ये है. ठीक है. So half the internuclear distance between two bonded atoms joined by each other by a single covalent bond is known as covalent radius. So covalent radius 1/2. अब हमको पता है कि H2 मॉलिक्यूल जो है, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और H2 मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन एटम्स है वो कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है? कोवेलेंट बॉन्ड से. अब ये देखो H2 molecule का internuclear distance. What is the meaning of internuclear? The word internuclear मतलब दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. पूरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, ये न्यूक्लियस जो है
ये हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो पूरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 0.74 एंगस्ट्रॉम यूनिट। व्हाट इज द एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ रेडियस। सो 0.74 एंगस्ट्रॉम है। अब 0.74 का हाफ कितना होगा? 0.74 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.37 एंगस्ट्रॉम विल बी द atomic radius or covalent radius of the H2 molecule। covalent radius कितना होगा H2 molecule का? 0.37 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो डेफिनेशन हो गया, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द centers of the nuclei which are bonded to each other by means of covalent bond। half the internuclear distance between the two atoms which are bounded to each other by means of covalent bond is known as covalent radius। अब देखिए covalent radius again same। Next is the van der Waals radius। The word van der Waals radius is defined as half the distance। Next जो है रेडिया है atomic रेडिया कौन सा? van der Waals radius। van der Waals radius is a weak radius and it is again always larger radius than the covalent। covalent से हमेशा क्या रहेगा? ये ज़्यादा रहेगा, इसका जो यूनिट रहेगा, इसका जो लेंथ रहेगा ज़्यादा रहेगा van der Waals radius का। ठीक है, इसका डेफिनेशन है van der Waals radius is half the distance between two similar atoms belong to neighboring molecules of the same substance in solid state। अब यहाँ पे देखो जो रेड कलर साइन है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे van der Waals रेडियस। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम। अब यहाँ देखो ये मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी क्या है? H2 मॉलिक्यूल है। ये एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन एटम कौन से बॉन्ड से कनेक्ट है? कोवेलेंट बॉन्ड से। ये दोनों हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्ट है? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इन दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, तो इन दोनों, ये है जो हाइड्रोजन एटम है ये अलग मॉलिक्यूल का है, ये हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का है। तो इन दोनों एडजेसेंट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम बिलोंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज नोन एज van der Waals रेडियस। अब इसका जो हाफ डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका फुल डिस्टेंस, इसका हाफ जो रहेगा ये पार्ट, half the distance between the two atoms which are adjacent to each other of the same substance in solid state is known as van der Waals radius। अब इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दोनों एटम का डिस्टेंस कितना? 1.98। 1.98 H2 मॉलिक्यूल का पूरा डिस्टेंस कितना है? ये दोनों हाइड्रोजन एटम। कोवेलेंट रेडियस में और van der Waals रेडियस में डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट रेडियस जो है एक ही मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और van der Waals रेडियस, van der Waals रेडियस दो मॉलिक्यूल के जो एटम्स है, एक दूसरे के एडजेसेंट एटम है, इनका हाफ डिस्टेंस जो रहेगा वो van der Waals रेडियस। van der Waals रेडियस इज रिलेटेड टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। van der Waals रेडियस किससे रिलेटेड? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों का सब्सटेंस क्या है? सेम। यहाँ भी H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी H2 मॉलिक्यूल, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। कोवेलेंट रेडियस क्या है? कोवेलेंट रेडियस एक ही मॉलिक्यूल में जो दो एटम अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड से, उनका रेडियस जो रहेगा वो कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, लेकिन van der Waals रेडियस जो रहेगा दो अलग अलग मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन सब्सटेंस सेम रहेगा। यहाँ भी H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी H2, सब्सटेंस सेम, लेकिन दोनों एटम क्या रहेंगे? अलग अलग H2 मॉलिक्यूल। 1.98 इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द, हाँ सॉरी, H2 मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कितना? 1.98। इसका हाफ कितना हो जाएगा फिर? 0.99 एंगस्ट्रॉम। सो 0.99 एंगस्ट्रॉम विल बी द van der Waals रेडियस ऑफ द H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 0.99 रहेगा, इसका van der Waals रेडियस कितना रहेगा H2 मॉलिक्यूल का? 0.9। just I will explain here। so what will be the van der Waals radius of H2 molecule? 1.98 divided by 2, so that will come 0. This is 0.99, and so same, half the internuclear distance, half the distance between the two atoms which are adjacent to each other of two different molecules of same substance। ये दोनों एटम कौन से हैं? दोनों हाइड्रोजन एटम है, सेम सब्सटेंस, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? डिफरेंट है। ये एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये डिफरेंस है इसमें van der Waals रेडियस में और कोवेलेंट रेडियस में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आयोनिक रेडियस। द वर्ड आयोनिक
हमें पता है वर्ड आयोनिक मीन्स व्हाट, it is related to the ion, it is related to the ions. The word ionic is related to the ion. Okay. How the ions are formed? Okay, how the ions are formed? Ionic radius. Suppose here it is one atom, it is standing here, it is another atom. Okay, सपोज ये एक एटम है, ये एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये एक एटम ये बोल रहे थे, ये एटम दूसरे एटम क्या बोल रहा, आई लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है एटम दूसरे एटम को, आई लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम बोल रहा आर यू पॉजिटिव। डेफिनेटली अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पे वो कौन से इसमें कन्वर्ट होगा, कौन सा चार्ज आएगा उस पर, पॉजिटिव, बिकॉज एटम इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट विच इज नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहते प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर समझो कोई एलिमेंट में 10 प्रोटॉन है, सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अब प्रोटॉन कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इसलिए उसके निगेटिव चार्ज 9 रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 10 हो गए, प्रोटॉन 10 हो गए। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, बचे हुआ क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो क्या रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, सो आर यू पॉजिटिव। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आर यू पॉजिटिव। ये जो क्वेश्चन है अभी कोरोना पीरियड में नहीं पूछ सकते आप, आर यू पॉजिटिव और नॉट। इट इज़ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, आर यू पॉजिटिव नाउ। अब ये एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो डेफिनेटली आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दैट एटम, पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इज, so in order for an atom to feel स्टेबल, आई इट वांट्स टू हैव, कोई भी एटम का स्टेबिलिटी कब होगी, कोई भी एटम स्टेबल कब रहेगा, जब उसका डबलेट कंप्लीट रहेगा या जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। जैसा न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। पहला शेल है, पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। इसी तरह दूसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल। ये इसमें देखो, ये पहला शेल है, ये पहला शेल है, ये एटम का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब स्टेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहना, लेकिन यहाँ पे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल मतलब दूसरा शेल जो है इसका, वैलेंस शेल इज लास्ट शेल, इसका लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें होना कितने, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। सो एवरी एलिमेंट ट्राई टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस एलिमेंट कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो अब यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, देखो 10 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, 10 न्यूट्रॉन। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये रेड कलर, ये पहले शेल जो है, ये पहले शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब इसका ये क्या है, स्टेबल है। सो एवरी एलिमेंट अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। ओके, noble gases group 8 are the most stable because they are naturally have full outer shells। ये देखो हम देखेंगे, ये एलिमेंट हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ट्रिटॉन। हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 10। 10 मतलब हो गया स्टेबल। थर्ड में एर्गॉन, एर्गॉन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कितने हो गए, 2 और 8 10, और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 18 जो है स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर नोबल गैस को बिलोंग कर रहा, या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने या गेन करने के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करा, तो वो रहेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो मोस्ट एटम डू नॉट हैव फुल आउटर शेल। कुछ एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में उनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, एक्सेप्ट कौन सा, जीरो ग्रुप एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट। अब हम कंसीडर करेंगे सोडियम एटम का, तो हमको देख रहे, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आयोनिक रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11।
11 है मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। इसी तरह अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी इसकी, आई विल राइट हियर, इफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज फर्स्ट शेल इज so sodium first shell is having 2 electron, second shell is having how many electron, 8 electron, and third shell is having 1 electron। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फॉर एग्जांपल एक सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया जैसा। अब अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गया, 10। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 11। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये समझो लॉस हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 10। 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे फर्स्ट शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन ये शेल में। अब सोडियम का कन्वर्शन हो गया सोडियम आयन, इट इज नोन एज व्हाट, सोडियम आयन। सो when atom loses electron, it get converted into ion, and that ion is known as positive ion, that is cation। जो भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करो तो उसके आयन को क्या बोलेंगे आप, केटायन। द एटम व्हेन लूजेस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू आयन, दैट आयन इज नोन एज केटायन। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कन्वर्ट होता है केटायन में। केटायन हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। केटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव, केटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये हो गया केटायन। सो अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इसका आखिरी शेल भी लॉस्ट हो गया। इसका मतलब सोडियम एटम की साइज पहले ऐसी थी, ज़्यादा बड़ी साइज थी, 3 शेल थे। अब साइज क्या होंगी इसकी, कम होगी, क्योंकि आखिरी का शेल निकल गया। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए निकल गया। ये सोडियम केटायन है और ये सोडियम सिंपल एटम है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। इसी तरह एनायन का डेफिनेशन, केटायन इज व्हाट, when the sodium atom or any atom loses electron it get converted into positive charge ion, that ion is known as cation। इसी तरह लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन कितने, 3, और इलेक्ट्रॉन 3। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। प्रोटॉन कितने, 8। न्यूट्रॉन कितने, 8। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे में कितने, 10 8 सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी में 5, 1 2 3 4 5। इस तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। दूसरे में 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 3, 1 2 3। इस तरह से। अब टाइप्स ऑफ आयन, सो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैटायन, अनदर इज आयन। सो कैटायन इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे किस तरह से, कितना अच्छी तरह से इंडिकेट किया, सी ए टी, टी में से यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे इसका नोटेशन टी बता रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कैटायन। अगर आपको याद नहीं रहा कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा रहता है, निगेटिव, तो आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है इसको उसने एक्सप्लेन किया टी, यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है उसने एक्सप्लेन किया एन, एन फॉर नेगेटिव, टी फॉर cation, that is positive। So cation is always positive charge, anion is always negative charge। So how the cation is formed? Cation is formed by loss of electron, anion is formed by gain of electron, anion is formed by gain of electron। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन और सोडियम केटायन। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, 281। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम कन्वर्ट हो गया 28। सोडियम आयन इज लेफ्ट विथ अ कंप्लीट ऑक्टेट। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2,8, 2 plus 8, टोटल हो गए 10। 10 बिलोंग्स टू नियॉन, एंड नियॉन इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नियॉन जो है जीरो ग्रुप एलिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। इस तरह से मोस्ट एटम डू नॉट हैव फुल आउटर शेल, जैसे प्रोटॉन 11 प्रोटॉन है, 11 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन में। अब एनायन कैसा फॉर्म होता है देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 287।
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे शेल में 7। इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, किसने, क्लोरीन ने, तो क्या आ जाएंगे, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,8। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने थे, क्लोरीन में प्रोटॉन कितने थे, 17 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है। अब क्लोरीन में यहाँ पे क्लोराइड, क्लोरीन का कन्वर्शन हो गया क्लोराइड आयन, निगेटिव आयन आया, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्यों एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव क्यों आया, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब 17 प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस में। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 17 नहीं है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया। तो क्लोरीन का कन्वर्शन हो गया क्लोराइड आयन, क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। अब क्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे, देखो क्लोरीन का यहाँ एटॉमिक साइज चेंज हो जाएंगे। सपोज यार इसका एटॉमिक साइज ये है, सपोज यार ये क्लोरीन का एटॉमिक साइज ये है। अब यहाँ कन्वर्शन क्या होगा, क्लोरीन का कन्वर्शन होगा क्लोराइड, क्यों क्लोराइड होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, चार्ज क्या आएगा इस पे, निगेटिव। सो Cl विल बी निगेटिव, क्लोरीन का हो गया क्लोराइड आयन, और ये है सिंपल क्लोरीन एटम। तो क्लोराइड आयन हुआ, इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया। केटायन का क्या होता है हमेशा, अगर सोडियम एटम, जैसे ये सोडियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केटायन का साइज हमेशा छोटा रहता है और एनायन का साइज हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। नाउ गो फॉर आवर मेन टॉपिक, दैट इज आयोनिक रेडियस। अब केटायन, एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसका कन्वर्शन होगा केटायन, इसी तरह दूसरा एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो उसका कन्वर्शन हो गया एनायन। तो इन एटम्स का, इन आयंस का अगर हम रेडियस काउंट करेंगे या रेडियस निकालेंगे, दैट रेडियस इज नोन एज आयोनिक रेडियस। द रेडियस ऑफ आयन इज नोन एज आयोनिक रेडियस। सो सेम concept, the distance from the center of the nucleus of an ion to the valence shell electron is known as ionic radius. This is known as ionic radius. So this is the anion. Anion is always larger than the cation. ये cation. Anion is negative charge, cation is positive charge. तो अब cation and anions are bonded to each other by means of ionic bond. By means of ionic bond. तो इसका जो distance रहेगा, center, the distance from the center of nucleus of cation to the valence shell electron. ये न्यूक्लियस का, ये सेंटर है न्यूक्लियस, इसका केटायन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, दैट इज नोन एज आयोनिक रेडियस ऑफ केटायन। इसी तरह एनायन का क्या रहेगा, ये एनायन है, एनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जहाँ तक इसका असर रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, दैट इज नोन एज आयोनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। तो रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। सो एटॉमिक रेडियस अगर चेंज हो रहा है तो क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, एज यू गो डाउन फ्रॉम कॉलम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब जैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे गए तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा। इसी तरह लेफ्ट से राइट गए तो शेल नंबर वही रह रहा है, लेकिन एटॉमिक और आयनिक रेडियस कम होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। सो एटम, cation and what is the difference, so anion is always larger than neutral, this atom is the neutral atom, जैसे क्लोरीन है, सोडियम है, ये न्यूट्रल एटम। सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम केटायन। तो केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम, केटायन का साइज हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल एटम से कम रहेगा, देखो एटॉमिक साइज का हमेशा कम रहेगा, तो आयनिक रेडियस भी क्या रहेगा, कम। तो साइज ऑफ न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन द आयन केटायन, या फिर ऐसा बोलो, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम। अब एनायन क्या कैसे फॉर्म होता है, एनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्म होता है। तो एनायन जब भी फॉर्म होगा, एनायन कब फॉर्म होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे न्यूट्रल एटम, तो उसका कन्वर्शन होगा एनायन में, जैसे क्लोरीन का कन्वर्शन हो गया क्लोराइड आयन। तो एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। ये एटम है न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। ये है पॉजिटिव चार्ज मीन्स केटायन और नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन। एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द
neutral atom, and cation is always smaller than the neutral atom. Okay. So next we will see in next class terms of the these all these radius. All these factors we will see in next class. Thank you very much.